Hello everyone, I am back again. Today in the teaching learning process of tenses, I am going to tell you about the second part, past. In the teaching learning process of tenses, there are three kind of tenses. In your last videos, we completed about present in visually four parts. And today I am going to start your next part of the tense, that is past. The past indefinite tense for the standard 9th and 10th. And as usual, I just want to tell you the definition. How can we identify in which manner, and how can we identify this is the sense of the sentence that is belong to the past along with the some of the formations also. So first of all, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे मीन्स एक्शंस कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित काल में घटित हुए या समाप्त हुए. सो स्टूडेंट, जो चीज हमारी भूतकाल में हुई थी, हुई या हुई थी, ऐसी जो इंडिकेशंस होते हैं वो हमें पास्ट का इंडिकेशन देते हैं. एंड सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स विच अकर्ड इनटू पास्ट नोट शोइंग इट्स इफेक्ट ऑन प्रेजेंट. प्रेजेंट से उनका कोई लेना देना नहीं. अगर मैं ये कहता हूं कि मैं कल दिल्ली गया, मीन्स मैं कल दिल्ली गया, दैट टाइम पास्ट, वो समय निकल गया, वो समय चला गया, क्योंकि वो कल की बात थी, ना कि आज की. कल की बात थी. सो आई जस्ट वांट टू प्रूव दिस थिंग विद इन द एग्जांपल. ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे. यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, जो कल चला गया. टुडे इज संडे, आज संडे है, तो कल क्या था? सैटरडे था. तो कल वो दिल्ली गया, लेकिन आज उसका कोई लेना देना नहीं है वर्तमान से. तो चलिए इसकी जो ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग हम हिंदी देखते हैं. आ, ए, ई, या, और उनके साथ था, थे और थी. और यूज क्या होता है स्टूडेंट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वो देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट है, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन मुंबई एंड यस्टरडे. All these are the indications which shows the sense of past indefinite tense. So yesterday, yesterday means जो कल समय चला गया. And another one thing student, in the teaching learning process past indefinite tense, यहाँ past indefinite tense जो है बच्चे, उसमें आपका सिंगुलर प्लूरल नहीं है. सभी नंबर और पर्सन्स के साथ यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आपको सेकेंड फॉर्म जो है वो वर्ब की यूज करनी है. राइट नाउ आई रब इट सो दैट आई कैन गिव यू द रेस्टेड इंस्ट्रक्शंस विद इन द प्रॉपर वे. सो दिस इज ऑल अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो नेक्स्ट थिंग, एज यूजुअल in simple sentences you have to use subject plus verb second form plus object. So as usual, this is the simple sentence. This is simple sentence. In the teaching learning process of simple sentence in the past indefinite tense, suppose recently I wrote this sentence, he went to Delhi yesterday. He went to Delhi yesterday. So he, subject, second form, preposition, and Delhi and yesterday. So now in the same process in negative. Negative, in the negative sense, there will be did. There will be did not, and after that verbs first form plus object. Students, for your kind information, now the question arises. Some of the students get confused at that moment when the question arises for the negative sense, interrogative sense, interrogative and negative sense. What they think? Sir, recently you told us you have to use verb second form, and but now you have changed the sense of this sense. You have used here verb first form. So students, I just want to tell you, you have to use verb second form in the past sense, in the past indefinite tense, in the simple sentence. You have to use verb second form
in the simple sentence, but in the sense of rested will definitely use the second form, but that will be in the form of did. Do second form of do is did. So after using did in the negative sense, interrogative sense, interrogative and negative sense, you will not repeat the same verb's second form in the same sentence. You have to use the second form of the verb in the same sentence only once. आप एक बार बच्चे यूज कर सकते हैं, आप दो बार नहीं। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर ही आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, लेकिन जब बात आ जाती है आपकी यहां पर नेगेटिव सेंस की, तो यहां पर हम डिड यूज कर रहे हैं बच्चे। तो ये डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, तो हम इस रूल रेगुलेशन को यहां पूरा कर रहे हैं, तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। हाउ इज इट? ही डिड नॉट। नाउ डोंट राइट व्हेन, गो टू Delhi yesterday. So this is the negative sense, and as usual in the interrogative sense, what you have to use? Before subject there will be did, and after that subject, after that verb's first form, and after that object. In the same sense, now we'll write the sentence. First of all, as usual, did he go to Delhi yesterday? Did he go to Delhi yesterday? The sense of the interrogative will be in this form. And now the fourth part, as usual, interro oblique negative. So as usual, we have to copy did as it is. We have to pick this did from the interrogative sense, and after that subject. After that negative sense. As usual, we did this thing in the negative sense. In the negative sense. Now the not, then go, then verb's first form, then object. Now the formation of the sentence will be did he, subject he, not go to Delhi yesterday. As usual, here it is the same sense. And at last there will be question mark in the last two senses, interrogative, interrogative and negative. So this is the formation within the four kind of sentences: simple sentence, negative, interrogative, interrogative oblique negative. So you have to use or form the sentences in this manner. So दूसरी बड़ी चीज स्टूडेंट्स इसी के साथ में कहना चाहूंगा वो ये बच्चे कि जो लास्ट में मैंने पहचान बताई है, आ, ए, ई, या, इनके साथ जो लगेगा था, थे, थी, तो ये ऑलरेडी था थी की सेंस दे देती है। वह दिल्ली गया, उसने खाना खाया, वह कल गया, वह कल गया, वह कल गया, गया या, मीन्स ये जो सेंसेस रहेंगी जब हम फॉर्म करते हैं अपने दिमाग के अंदर उस स्ट्रक्चर को हिंदी ट्रांसलेशन से, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। सो बेसिक में ये चीजें जरूरी होती हैं स्टूडेंट्स, लेकिन स्लोली धीरे धीरे जब आप एक स्टेप उठाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो फॉर्मेशन बनती है, देन यू स्पीक थ्रू योर सेंटेंसेस, तब आप अपने सेंटेंसेस के थ्रू उसको बोलते हैं। तो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टेंसेस की जरूरत होती है, उसी के अकॉर्डिंगली हम इसकी सेंस को यूज करते हैं। सो यहां पर मैंने बच्चे आपको चार जो हैं इसके सेंटेंसेस बता दिए हैं। अब दूसरी बड़ी चीज क्या रहेगी बेटा, इसके अंदर जो आपने यूजेस करने हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगी और कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमने यहां पर क्या यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है। सो सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आई एम गोइंग टू राइट। फर्स्ट वन, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। फर्स्ट हमारी इंस्ट्रक्शंस क्या रहेगी बेटा, एन एक्शन कंप्लीटेड, an action completed, an action completed, an action completed in the past, in the past, and with reference, with
reference, with reference, which reference? To the time of, with reference to the time of speaking. एक रेफरेंस देंगे हम कि वो समय क्या है जब हम वो चीज बोल रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं की विजिट करके आए, आप किसी टूर पर गए, तो आप क्या कहेंगे कि मैंने वहां पर मैंने चिड़ियाघर में पक्षियों को देखा, मैंने चिड़ियाघर में पक्षियों को देखा। I saw the birds in the zoo. I saw the birds in the zoo. Zoo means चिड़ियाघर और so means देखा, means आपने पास्ट की बात की बच्चे यहां पर, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको कहां मिलने वाली है? द पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देन नाउ बी, बी क्या करेगा आपका? हैबिचुअल, हैबिचुअल और रेगुलर, हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। आपका पास्ट में कोई हैबिचुअल और एक रेगुलर एक्शन था, हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन था, वो जो पास्ट में आप करते थे। जैसे क्या है? गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। क्या एग्जांपल रहेगा? गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, स्पोक द ट्रूथ। गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। अनदर वन थिंग स्टूडेंट, यहां कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि कहीं आप ये सोचें कि जो वर्ब ऑफ टाइमिंग है, ऑलवेज है, एवरीडे है, ये हमारी प्रेजेंट में रहेगी। तो बेटा अगर आज आपका जो प्रेजेंट है, आने वाले समय में वो पास्ट में भी तो कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब कल का दिन मानते हम मंडे, मंडे अगर प्रेजेंट में आएगा तो आज वाला पास्ट में चला जाएगा, या नहीं होगा ऐसा? द सेम थिंग विल बी रियल स्टूडेंट्स। सो यहां कंफ्यूजन की तो कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं आई नेवर टेल अ लाई, सपोज कीजिए मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, एक बार आपको क्लैरिफाई करने के लिए, आई नेवर टेल अ लाई, आई नेवर टेल अ लाई, एंड अलोंग विद दिस आई नेवर टोल्ड अ लाई, आई नेवर टोल्ड अ लाई। Then what is the difference? Difference only the timing, but the both sentence are correct. These both sentence are correct. ये दोनों सेंटेंस बच्चे ठीक है कि ये क्या बात कर रहे हैं? जो ऊपर वाला है पर्सन क्या कह रहा है? मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। और नीचे वाला क्या कह रहा है? कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही नहीं बोलते। एक ने बोला कि प्रेजेंट की बात कर रहा है कि मैं कभी नहीं बोलता हूं, और एक ने कहा कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सो यहां पर भी आपका प्रेजेंट में भी नेवर लगेगा और पास्ट में भी नेवर लगेगा। बात किस चीज की है बच्चे? टाइमिंग की, सिर्फ टाइमिंग की बात करते हैं हम, और टेंस का मीन्स ही टाइमिंग होता है बेटा। इसलिए सबसे बड़ी चीज आपको ये ध्यान रखनी है। और हम क्या करते हैं बच्चे, इसमें एक एक्स्ट्रा के अंदर पॉइंट दे रहा हूं मैं, द habitual past can be, habitual past can be expressed, can be expressed, और किससे एक्सप्रेस करते हैं बच्चे हम? by using used to, by using used to। अब इसमें बेटा यूज्ड टू में कई बार हमारे दिमाग में ऐसी सेंस आ जाती है। सपोज कीजिए मैंने किसी बच्चे को खेलते हुए देखा, गिल्ली डंडा खेलते हुए देखा, तो मैं क्या कहूंगा? बेटा जब मैं बच्चा था मैं भी गिल्ली डंडा खेला करता था, मैं गिल्ली डंडा खेला करता था। When I was a child, I also used to play गिल्ली डंडा। और नॉट द सेम थिंग विल बी। क्रिकेट खेल रहे हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मीन्स जब मैं बच्चा था मैं क्रिकेट खेला करता था। When I was a child, I also used to play cricket। मीन्स बच्चे इसका क्या सेंस रहेगा? आया करता था, जाया करता था, खेला करता था, देखा करता था। ये सारी सेंसेस जो आएंगी ये बेटा पास्ट के हैबिचुअल में आएंगी, जो किसी जमाने में आपकी आदत थी, हैबिचुअल एक्शन था, तो उसके अंदर हम बच्चे यूज्ड टू को यूज करेंगे बेटा, यूज्ड टू। अभी उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया ही है, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट,
when I was a student, then what I did, I used to play cricket. जब मैं एक विद्यार्थी था मैं क्रिकेट खेला करता था. सो देयर इज नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चे. थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मांगती है ग्रामर में कुछ नहीं है. ग्रामर सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहती है, आपका थोड़ा सा फोकस चाहती है. इसमें कोई आपने वर्ड मीनिंग याद नहीं करने हैं, कोई क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने हैं. आपने सिर्फ और सिर्फ बच्चे फॉर्मेशन करनी है. यू हैव टू लर्न अबाउट द फॉर्मेशन. सो ये चीज करनी है बेटा, आपने वो कुछ भी नहीं करना. नेक्स्ट इसके अंदर बेटा क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट जो इसकी फॉर्मेशन में है आपका, इसकी फॉर्मेशन में नेक्स्ट रहेगा हमारे पास एन इवेंट which occurred at a particular point in the past. एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया है आपका, वो भी किसमें दिया है बेटा, पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट. जैसे क्या है, she walked very slowly. अब ये पॉइंट दिया है उसने क्या, वेरी स्लोली, कि वह बहुत धीरे धीरे चले. सो नेक्स्ट इसके अंदर क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट इसमें आपकी जो सबसे बड़ी चीज रहेगी इसमें, टू एक्सप्रेस एन इवेंट विच अक्कर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट. और अब नेक्स्ट पॉइंट इसका अंदर क्या रहेगा बच्चे, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें, सी में मैंने आपको पर्टिकुलर पॉइंट में बताया है. अभी क्या है, एन एक्शन विच occupied a period of time. A period of time किसमें वो, इन द पास्ट के अंदर आपका एक पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, और वो पीरियड ऑफ टाइम कौन सा है, विच इज नाउ एंडेड, जो खत्म हो चुका है, वो समय खत्म हो गया. वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years. हम 10 साल इस घर में रहे, या इस घर में रहते थे, या इस घर में रहे थे. अब वो पीरियड जो है वो खत्म है, तो क्या आ गया उसके अंदर भी आपका पास्ट indefinite tense. So now I shall rub it so that the rested instructions can be clarified to you all. Now the next point, here it comes, two actions. Another one thing क्या है बेटा इसमें, two actions taking place simultaneously, एक साथ. Simultaneously means that at the same time. दो कार्य बच्चे एक साथ हो रहे हैं, एक साथ किए जा रहे हैं. उसके अंदर भी पास्ट की सेंस लगाएंगे. कैसे, फॉर एग्जाम्पल, while I sipped coffee, then I revised my lesson. Means that कि जब मैंने चाय की जो है चुस्कियां ली, मैंने मेरा पाठ दोहरा लिया. तो दोनों काम जो एक साथ हो रहे हैं, वो पाठ भी दोहराना था और कॉफी की जो चुस्कियां भी ले रहा. Another one things क्या है स्टूडेंट इसके अंदर, आपके जो दो एक्शन है, ये बात हमने अभी की. उसके बाद क्या है, when and why. क्या रहेगा उसके अंदर आपका, when and why किस में आ जाता है, सेंटेंस के अंदर. when and why, both these two words always keep in your mind, used in simple past tense. ये आपके सिंपल पास्ट टेंस में बेटा यूज होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में. और इंडिकेशन क्या कहते हैं, both the actions took place
in both the actions took place in the same duration of time. same duration of time. यहां पर सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर ये चीज आ रही है. जैसे क्या है, आई प्लेड चेस. ये एग्जांपल है बेटा. while he slept, मतलब जब वह सोया मैंने चेस खेली. मतलब मैंने चेस खेली और जबकि वह सोया हुआ था. तो यहां पर ये चीज रह जाएगी. अनदर वन थिंग, अब कई बार क्या होता है बच्चे, हम नॉर्मली भी इसे कह देते हैं कि जब आप रमन के घर गए वह क्या कर रहा था. जब रमन के घर गए वह क्या कर रहा था, हमारा ये लहजा होता है. मीन्स अब सोचने की चीज है बच्चे कि एक में तो हम पास्ट इंडेफिनिट सेंस यूज कर रहे हैं, दूसरे में कंटिन्यूइंग प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं पास्ट के, कि वो काम चल रहा था, क्या हो रहा था. When you went to the house of Raman, what was he doing? ये सेंस हो जाएगी. मीन्स क्या कि सिंपल पास्ट के साथ कॉन्टिन्यूस ऐड हो जाएगा. सिंपल पास्ट भी हो सकते हैं दोनों एक्शंस में, और आपका एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है. तो ये वही टाइमिंग की बात है, उस सेंस की बात है, उस टाइमिंग की बात है जो हम करने वाले हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आई एम गोइंग टू टेल यू एंड यू हैव टू टेक केयर एंड लिसन केयरफुली. You have to listen carefully, students. When, till, until, when, till, until, as soon as, and another one thing, student, for your kind information, before. All these above of time in simple past tense indicate one action follow the other. किस चीज की तरफ ये पास्ट में इंडिकेट करते हैं? वन एक्शन फॉलो द अदर. वन एक्शन फॉलो द अदर. ये पास्ट में इंडिकेशन करते हैं बच्चे. ये जो वर्ड्स मैंने यहां पर जो नोट किए हैं वो किस चीज का इंडिकेशन करते हैं? वो एक एक्शन जो दूसरे को फॉलो करता है. शी वेटेड फॉर हर मदर. अब मैं एग्जांपल से बता रहा हूं. She waited for her mother. She waited for her mother. अब उसमें एक दूसरे को फॉलो कैसे करेंगे? Till and until both can use until. Till और until it got dark. It got dark means अंधेरा हो. ठीक है. She waited for her mother. ठीक है. Until it got dark. उसने क्या किया? उसने जब तक अंधेरा हुआ अपनी मदर का इंतजार किया. मीन्स यहां पर एक एक्शन के बाद दूसरे की बात हो रही है. एक जगह इंतजार करना है, दूसरा अंधेरा हो रहा है. अगर एक जगह अंधेरा हो रहा है तो दूसरा इंतजार करना है. तो ये फॉलो कर रहा है उस प्रोसेस को बच्चे. तो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट indefinite tense. So along with this, I just want to tell you some of the pet words related to the past tense जो इसके अंदर यूज होते हैं बच्चे, जिसमें हमें एक सेंस का पता चलता है कि ये किससे बिलोंग करता है. सबसे बड़ी चीज बेटा इसके अंदर आपका यस्टरडे आता है. यस्टरडे, और यस्टरडे में वो कोई भी यस्टरडे लेगा आपका. कैसे यस्टरडे होता है? यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नून, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून. और क्या रहेगा बेटा? द डे बिफोर यस्टरडे. द डे बिफोर यस्टरडे मीन्स कल से पिछला दिन चला जाएगा, कल से पिछले दिन में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद बेटा क्या रहेगा आपका? द डे बिफोर यस्टरडे, द अदर डे, द अदर डे. अनदर वन बेटा इसमें क्या रहेगा? एगो रहेगा. द प्रीवियस डे रहेगा, प्रीवियस डे. अनदर वन क्या रहेगा बच्चे इसमें? एंशिएंट. एनी ईयर कैन बी देयर, 1990, समथिंग एल्स, कि जो हमारा पास्ट से रिलेटेड करता हुआ होगा उसके अंदर. अनदर वन थिंग क्या रहेगी बेटा? एक लास्ट वर्ड आएगा और लास्ट वर्ड के साथ आपके कई वर्ड कनेक्ट हो जाएंगे. लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट मिनट, लास्ट आवर, व्हाटएवर, वो आपके इसके साथ कनेक्ट
हो जाएंगे लास्ट के साथ, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट। और क्या रहेगा बच्चे इसके अंदर, इन मार्च, इन मई, जैसे मैंने अभी ये ईयर बताया, इसमें क्या हो सकता है, इन मार्च 1990, इसकी चीज ये आ सकती है। तो बेटा ये कुछ इसके टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ब्स होते हैं, इसे बच्चे हम अबव ऑफ टाइम कहते हैं, अबव ऑफ टाइम। ये हमारे अबव ऑफ टाइम होते हैं बेटा, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस में उसके सेंस को, कि अगर उनमें ये सब चीजें हैं कहीं भी सेंटेंस में, या हमने स्पोकन में यूज करनी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हुए हम इन सबको यूज कर सकते हैं। जैसे आपके ये सारे के सारे अबव्स मैंने बताए, और यस्टरडे में तो कोई भी यस्टरडे के साथ ऐड हो जाएगा, इवनिंग है, नून है, आफ्टरनून है, मॉर्निंग है, व्हाटएवर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट आवर, लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, such kind of verb of times will be there. So यहां पर बच्चे क्या रहेगा आपका, ये आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस रहेगा। सो इस टेंस के अंदर आपने ध्यान रखना है कि ये पास्ट में ऐसी घटना घटी थी जिसका वर्तमान से कोई भी लेना देना नहीं है। कोई भी काम कल कर लिया, कोई भी चला गया, कि कल वो दिल्ली गया, कल शाम को गया, कल सुबह गया, डे बिफोर यस्टरडे गया, व्हाटएवर, ये सारी सेंसेस बच्चे आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती हैं, जिसमें आपको फॉर्मेशन बताया, कुछ एक इंस्ट्रक्शंस बताई, देन यू हैव टू फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट, कंटिन्यू योर प्रैक्टिस, लेटर देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स to anybody else in the identification to rectify about the rule and regulations or the formation of past indefinite tense. So for your next video you have to wait till then. Thank you very much. God bless you.